اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدینۃ المنورہ میں اسلام کس طرح پھیلا، کیسے اوس اور خزرج کے لوگ اسلامی ایمان کی روشنی میں روشن ہوئے، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ پہلا اور دوسرا وعدہ ہوا، اور کیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی جانب بھیجا گیا تاکہ ان کی محنت سے اس دین کی آواز گھر گھر پہنچے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح قریش نے دارالندوہ میں اکٹھے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش سچی، اور ابو جہل نے کیسے ان کا ساتھ دیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، ان دلچسپ باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو اپنا ٹھکانہ بنایا تو اسے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہا گیا، جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اتہاس کے لحاظ سے یہ شہر بہت پرانا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت مدینہ میں 2 اثر والے عرب قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی وہاں رہتے تھے۔ اوس اور خزرج پہلے وقت میں بت پرستی کے راستے پر تھے، جبکہ یہودی اہل کتاب کے ماننے والوں میں آتے تھے۔ شروع میں اوس اور خزرج آپس میں میل جول سے رہتے تھے، مگر پھر عربی عادتوں کے مطابق ان کے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے، یا یوں کہیں کہ یہودیوں نے ان کے بیچ فتنہ شروع کرا دیا۔ آخری جھگڑا، جسے عربی اتہاس میں جنگ بباس کہا گیا، بہت ہی بھیانک اور خونی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں اوس اور خزرج کے کافی نامی بہادر شہید ہو گئے، اور یہ دونوں قبیلے بہت کمزور ہو کر رہ گئے۔ یہودی تعداد میں بہت کم تھے، مگر پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کا اثر بڑا تھا۔ اوس اور خزرج نازک حالت میں اکثر یہودیوں کی تاثیر کے نیچے رہتے تھے۔ پھر جب اوس اور خزرج نے اسلام قبول کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت نے ان کے پرانی نفرتوں اور جھگڑوں کو مٹا دیا۔ اب یہ دونوں قبیلے ایک شیشے کی طرح آپس میں جڑ کر رہنے لگے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کی جان، مال اور نصرت میں دل کھول کر مدد کی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انصار یعنی مددگار کا لقب دیا۔ قرآن کریم نے بھی ان انصار کی تعریف کی اور ان کی نصرت کو بڑی قیمت سے نوازا۔ حضرت عبیدہ اور دوسرے بزرگ انصار کی شان اتنی بلند ہے کہ تمام امت مسلمین کے لیے ان کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنا ایمان کا بھی ایک حصہ ہے اور عمل میں لانے لائق کام مانا گیا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، انصار بے شک پہلے بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے ساتھ کھل مل کر اتنا جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ پر یہودی اکثر دباؤ ڈالتے اور دھمکاتے رہتے تھے کہ جب وہ دن آئے گا تو ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ اس لیے جب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پھیلنے لگی تو اوس اور خزرج دونوں بے قراری سے اسی گھڑی کے انتظار میں رہے۔ سن 1190 میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معقول روایت کے مطابق حج کے موقع پر مینا کے میدان میں حاضر ہوئے تو آپ نے وہی طریقے سے لوگوں کو اسلامی دعوت دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کے سامنے ہدایت پیش فرماتے رہے تاکہ دلوں میں ایمان کی سزا اثر کرے۔ مینا کے اسی وادی جہاں آج مسجد الاقصی قائم ہے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خزرج کے 6 لوگ آئے۔ صلاۃ و سلام کے بعد رسول کریم نے ان مریدوں کو ان کا نام اور نسب پوچھا، پھر انہوں نے انہیں قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں اور اسلامی دعوت دی۔ یہ لوگ ان آیتوں سے اتنے متاثر ہوئے اور آپس میں مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ وہی نبی ہیں جن کی خوشخبری یہودی دیا کرتے ہیں۔ ڈر لگا کہ کہیں یہودیوں سے پہلے وہی ہم میں سے اسلام کو قبول نہ کر لیں، اور اسی دباؤ اور ایمانی جد و جہد میں سب ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ مدینہ لوٹ کر اپنے گھر والوں اور پریوار والوں کو بھی اسلام کا پیغام دینے لگے۔ ان سے خوش قسمت لوگوں کے نام یہ ہیں: پہلا حضرت عقبہ بن عامر بن نابی، دوسرا حضرت ابو امیہ اشد بن جراح، تیسرا حضرت عوف بن حارث، چوتھا حضرت نافع بن مالک،
पांचवा हजरत कुलवा बिन आमिर बिन हदीदा और छठा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बिन रयाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। इसी से चले में अगले साल सन 1290 में हज के मौके पर मदीना के 12 नंबर तख्श मीना की उसी घाटी में छुपकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में बैत के लिए आए। इस इस्लामी बैत को तारीख में बैत अक़वा का नाम मिला। साथ ही इन लोगों ने दरख्वास्त की कि हमें इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भेजा जाए ताकि हम अपने शहर में जाकर दीन की तालीम कर सकें। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना भेजा ताकि वे उन्हें इस्लाम की तालीम दें और लोगों को तहरीक करें। हजरत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असद बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में ठहर कर अंसार के लोगों को दीन इस्लाम की तालीम दी। रोजाना एक एक नया बंदा इस्लाम की रोशनी में आता और इस तरह मदीना से लेकर कुबा तक हर घर में ईमान की बरकत फैलने लगी। काबिलात और उसके सरदार हजरत साद बिन मुआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बहादुर और असरदार शख्सियत थे। जब हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इस्लामी दावत दी तो शुरू में उन्होंने ठुकराया और बेरुखी दिखाई, मगर जब हजरत मुसाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान करीम की तिलावत उनके सामने की तो उनके दिल पिघल गए और वो इतनी गहराई से मुतासिर हुए कि फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम के बाद पूरा कबीला और भी मुसलमानों में शामिल हो गया। उसी साल मशहूर माह रजब की 27वीं रात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए मिराज मशूकी हुआ। इसी सफ़र मिराज में 5 नमाजें फर्ज कर दी गईं। यह वह बरकत भरी रात थी जब रब ताला की रहमत का एक नया नूर अब तक की हिकायतों में उतरा। इसके ठीक एक साल बाद 1390 में हज के मौके पर मदीने के 72 बहादुर नामवर लोग मीना की उसी घाटी में छुपकर अपने बुत परस्तों से ऐलान नगाह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लामी बैत करने आए। उन्होंने अहद और वफा का वादा किया कि हम अपनी जान देकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इसी मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मदीना के लोगों से कहा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़ानदान बनी हाशिम में बहुत इज्जत वाले हैं। हम अक्सर उनकी हिफाजत करते हैं, उनको दुश्मनों से बचाते हैं। अब अगर तुम उन्हें अपने शहर लेकर जाना चाहते हो तो अच्छी तरह सोच लो, क्या तुम मरते दम तक उनका साथ निभा सकोगे, वरना अभी से तय कर लो। इस पर हजरत बरा बिन अज़ाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोश में बोले, हम तो तलवारों के पले बड़े हैं और बस यही कह पाए कि हम तैयार हैं। फिर हजरत अबुल हय्यम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चेतावनी दी कि हमारे यहूदियों के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, मुसलमान होने के बाद ये रिश्ते टूट सकते हैं। अल्लाह ताला अगर तुम्हें ताकत दे तो कहीं तुम हमें छोड़कर मक्का न चले जाओ। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, तुम इत्मीनान रखो, तुम्हारा खून मेरा खून है, मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त। जब अंसार ये बैत कर रहे थे तो हजरत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्बास बिन नजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मेरे भाइयों, तुम भी समझते हो कि तुम किस चीज़ पर बैत कर रहे हो। ये दरअसल अब्राहमी कुल यानी कुरैश से जंग का इम्तिहान है। अंसार ने तौहीद की राह पर निगाह डालकर कहा, हाँ, हम इसी पर बैत कर रहे हैं। हम अपनी जान देकर भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। इन नेक कमाल और ईमानी सोच ने मदीनतुल मुनव्वरा को इस्लामी रोशनी से रोशन कर दिया। अंसार ने अपने जान व मन और माल से इस्लाम की इमदाद की। इसलिए जवाहर तशर्रुफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अंसार यानी मददगार का बड़ा नाम दिया। कुरान करीम ने भी इनकी तासीर और नुसरत को बड़े बड़े अफसानों से सराहा। अंसार की शान इतनी बुलंद है कि तमाम उम्मत मुस्लिमीन के लिए उनकी मोहब्बत और उनके नक्श कदम पर चलना ईमान का अहम हिस्सा माना गया है। बैत होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात में से 12 आदमियों को नकीब यानी सरदार मुकर्रर फरमाया। इन सब के बाद ये सभी हजरत
अपने अपने डेरे पर चले गए। सुबह के बाद जब कुरैश को इसकी खबर पहुंची तो बे गुस्से में आग बबूला हो गए और इन लोगों को डांट कर मदीना के लोगों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने हमारे खिलाफ लड़ने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है? कुछ अंसार जो मुसलमान नहीं हुए थे अपनी कौमी बगावत और इस्लाम की बेरुखी से झूठ बोलकर लौट गए, मगर जब हकीकत के बाद कुछ अंसार की बैत का हाल मालूम हुआ तो कुरैश गुस्से में बेकाबू हो गए और बैत करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पीछा किया, मगर कुरैश हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अलावा किसी और को पकड़ नहीं सके। हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मक्का ले जाकर कैद कर दिया, मगर जुबैर बिन मुतीम और हारिस बिन अरब बिन उमैया ने कुरैश को समझाया कि अल्लाह के लिए साद बिन उबादा को फौरन छोड़ दो, वरना तुम्हारी तिजारत में मुश्किलात पैदा होंगी और व्यापार पर असर पड़ेगा। यह सुनकर कुरैश ने हजरत साद बिन उबादा को कैद से आज़ाद कर दिया और खैरियत से मदीना मुनव्वरा पहुँचाया। मदीना में जब इस्लाम और मुसलमानों को पनाह मिल गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इजाज़त दे दी कि वे मक्का से हिजरत करके मदीना चले जाएं, और सबसे पहले हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत की। उसके बाद उनकी दूसरी टोली भी मदीना की तरफ रवाना होने लगी। जब काफिर कुरैश को इसका पता चला तो उन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर मुसलमानों ने छुप छुपाकर हिजरत का सिलसिला जारी रखा। इस तरह मक्का से बहुत से सहाबा मदीना मुनव्वरा पहुँचे। सिर्फ वही सहाबा मक्का में रहे जो या तो काफिरों की कैद में थे या किसी और वजह से हिजरत करने में असमर्थ थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहे और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में ठहरे। जब मक्का के काफिरों ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के मददगार मदीना में पहुंच गए हैं और अंसार ने मदीना आने वालों को पनाह दे दी है, तो उन्हें खतरा महसूस हुआ कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना न पहुंच जाएं और अपने हामियों की फौज लेकर मक्का पर हमला न कर दें। चुनांचे इस खतरे का हल निकालने के लिए कुरैश ने अपने दारुल नदवा यानी पंचायत घर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें मक्का के सभी सरदार और ताकतवर लोग शरीक हुए। अबू सुफियान, अबू जहल, उतबा बिन जुबैर बिन मुतीम, अबुल बख्तरी, जमा बिन असद, हकीम बिन हिजाम, उमैया बिन खल्फ वगैरह, इतने ये सब कुरैश के सरदार थे। इतने में एक बुजुर्ग शेख आया। वह शेख इब्लीस यानी शैतान की शक्ल में था। कुरैश के सरदारों ने नाम और नसब पूछा तो उसने कहा, मैं शेख नजद हूँ और अपनी राय देने आया हूँ। इस पर अबुल बख्तरी ने कहा कि इन्हें किसी कोठरी में बंद कर दो, हाथ पांव बांध दो और खाना पानी दे दो। मगर शेख नजद ने कहा कि योजना ठीक नहीं है, खुदा की कसम अगर इन्हें किसी मकान में कैद किया गया तो इनके सहाबा जान पर खेल कर इन्हें छुड़ा लेंगे। अबुल असद रबिया बिन आमरी ने समझाया कि इन्हें मक्का से निकाल दो ताकि किसी दूसरे शहर में रहकर कुरान की तालीम और तबलीग से छुटकारा मिल सके। शेख नजद ने इतराज़ किया और कहा कि ये लोग कुरान की मिठास और अंसर अंदाज से पूरी अरब में लोगों को अपने तवे बना लेंगे, फिर तुम्हारे खिलाफ बड़ा लश्कर बना देंगे और तुम उनके सामने कमज़ोर हो जाओगे। अबू जहल बोला, मेरी राय यह है कि हर कबीले का एक बहादुर तलवार लेकर उठ खड़ा हो और सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें। इस तकबीर से कत्ल का जुर्म तमाम कबीले पर रहेगा और खानदान बनु हाशिम बदला लेने के लिए मजबूर होंगे। अबू जहल की यह खूनी योजना सुनकर शेख नजद यानी इब्लीस बहुत खुश हुआ और बोला कि बेशक ये प्लान सही है। सबने इसे मान लिया और वो बैठक खत्म हो गई। फिर खुदा ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, जब काफिर तुम्हारे खिलाफ तदबीर कर रहे थे कि तुम्हें कैद या कत्ल कर दें या शहर से निकाल दें, अल्लाह भी अपनी तदबीर कर रहा था और अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन है। अल्लाह ताला की यह खुफिया तदबीर क्या थी और कैसे उन्होंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। काफिरों की सारी योजना नाकाम हुई। इसका जिक्र हम अगले वीडियो में इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी
नई वीडियो के साथ। तो हम प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी इस वीडियो से कोई जानकारी हासिल हुई है तो हमारी इस वीडियो को अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी हासिल हो। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास जानेंगे नहीं तो खुद को पहचानेंगे कैसे। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।